اسمبلی انتخابات میں آج سب سے بڑی انتخابی جنگ، بنگال اور آسام سمیت 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہوگی ووٹنگ۔ انتخابات کے مد نظر سیکیورٹی کے پختہ بندوبست۔ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات آج 234 سیٹوں پر ڈالے جائیں گے ووٹ، 4218 امیدوار میدان میں آزما رہے ہیں اپنی قسمت۔ کیرل اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ آج 140 سیٹوں پر ڈالے جائیں گے ووٹ، 957 امیدوار میدان میں۔ وہیں آسام کے آخری مرحلے کی لڑائی بھی آج، کانگریس بی جے پی میں کانٹے کی ٹکر، 40 سیٹوں کے لیے 323 امیدوار آزمائیں گے اپنی قسمت۔ مغربی بنگال میں تیسرے مرحلے کے تحت ووٹنگ آج، 31 اسمبلی سیٹوں پر حق رائے دہی کا کیا جائے گا استعمال، ووٹرز 205 امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں کریں گے قید۔ پڈوچیری میں آج تمام 30 سیٹوں پر ہوگی ووٹنگ، ریاست میں فی الحال صدر راج نافذ ہے، کانگریس حکومت اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کرنے کے سبب گر گئی تھی۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے دیا استعفیٰ، دلیپ پاٹل ہوں گے مہاراشٹر کے نئے وزیر داخلہ، انل دیشمکھ کی جگہ لیں گے دلیپ پاٹل ساوتکر۔ بامبے ہائی کورٹ سے انل دیشمکھ کو جھٹکا، بامبے ہائی کورٹ نے سی بی آئی جانچ کا دیا حکم، 15 دن میں ابتدائی جانچ جمع کرنے کی ہدایت۔ انل دیشمکھ معاملے میں بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا جائے گا چیلنج، ادھو حکومت جائے گی سپریم کورٹ، جانکاری کے مطابق مہاراشٹر سرکار کی جانب سے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھ بھی کریں گے پیروی۔ سپریم کورٹ سے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ یڈیورپا کو راحت، کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی روک، یڈیورپا کے خلاف مبینہ اراضی گھوٹالہ معاملے کی سماعت کا دیا گیا تھا حکم۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل اور اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ کی پریس کانفرنس، امت شاہ نے کہا اب فیصلہ کن مرحلے میں ہوگی نکسل کے خلاف لڑائی، ہماری جیت یقینی۔ وہیں چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل کا بیان، تیز رفتاری سے ہوگی نکسل کے خلاف کارروائی، نکسلیوں کو جلد گھٹنے ٹیکنے پر ہونا ہوگا مجبور۔ سی ایم بھوپیش بگھیل نے کیا بڑا اعلان، بیجاپور نکسلی حملے میں شہید جوانوں کے اہل خانہ کو ملیں گے 80 لاکھ روپے کی مالیت، ریاستی حکومت نے خاندان کے ایک شخص کو سرکاری نوکری دینے کا بھی کیا وعدہ۔ نکسلی حملے کے حوالے سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اٹھائے سوال، چھتیس گڑھ آپریشن پر دیے سی آر پی ایف چیف کے بیان کو لے کر راہل گاندھی نے کہا اگر یہ خفیہ ناکامی نہیں ہے تو ایک کے بدلے ایک موت کا مطلب ہے کہ یہ بے حد خراب اور کمزور طریقے سے انجام دیا گیا آپریشن ہے۔ بیجاپور میں شہید جوانوں کا جسد خاکی پہنچا، ان کے آبائی وطن، آخری دیدار کے لیے عمری بھیڑ، خراج عقیدت کیا گیا پیش۔ بی جے پی کا یوم تاسیس آج، پی ایم مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کارکنان سے کریں گے خطاب، صدر جے پی نڈا بھی رہیں گے موجود، صبح 10:30 بجے پروگرام کا انعقاد۔ ملک بھر میں کورونا توڑ رہا ہے سارے ریکارڈ، ایک دن میں 1,03,558 نئے معاملے، 478 افراد کی ہوئی موت، 52,000 سے زیادہ مریض صحتیاب۔ چھتیس گڑھ میں کورونا کی دوسری لہر کا قہر جاری، 24 گھنٹوں میں 7,302 افراد ہوئے کورونا سے متاثر، 38 متاثرین کی ہوئی ہلاکت، 44,000 سے زائد ایکٹیو معاملے۔ راجستھان کورونا کا قہر جاری، ریاست میں 2,429 نئے معاملے آئے سامنے، 24 گھنٹوں میں 12 افراد کی موت کی خبر۔ یوپی میں یوگی حکومت آئی ایکشن موڈ میں، کورونا پر نئی گائیڈ لائنز کی گئی جاری، ایک مریض کے ملنے پر 20 گھروں کو کیا جائے گا سیل۔ کورونا پر لگام کسنے کے لیے مہاراشٹر حکومت نے نئے رہنمانہ خطوط کیے جاری، نائٹ کرفیو کے علاوہ دن میں دفعہ 144 کا نفاذ، اس کے علاوہ پارک، سنیما ہالز، ہوٹلز اور بارز بھی رہیں گے بند۔ کورونا کی بالی ووڈ میں بھی ہوئی انٹری، اداکار اکشے کمار، اعجاز خان، وکی کوشل، اداکارہ بھومی پیڈنیکر کورونا پازیٹیو، اکشے کمار کی فلم رام سیتو کریو بھی متاثر۔
अमरावती जिला कलेक्टर ने एक मरतबा फिर जिले में लॉकडाउन लगाने का किया फैसला। इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के अहकामात जिला कलेक्टर ने किए जारी। जरूरी अशिया की दुकानों को छोड़कर तमाम बाजार बंद रखने की दी गई हिदायत। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नजर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों में इजाफा। मुंब्रा में लॉकडाउन के अंदेशे के सबब मुहाजिर मजदूरों की परेशानियों में इजाफा। दूसरी रियासतों से काम करने आए मजदूर हिजरत की तैयारियों में मसरूफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर कर्नाटक में एक बार फिर स्कूल बंद किए गए। रियासती हुकूमतें छठी जमात से लेकर 9वीं जमात तक क्लासेस न चलाने के लिए अहकाम किए जारी। दोबारा क्लासेस बंद कर दिए जाने के मामले को लेकर सरपरस्तों और सामाजिक कारकुनों में तशवीश। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर सैयद मुस्तफा हसन रिजवी ने कहा, गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादा अरसे से तलबा को बाकायदा तालीम हासिल नहीं हो पा रही, उनका हो रहा है नुकसान। सैयद मुस्तफा हसन रिजवी का कहना, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर सिर्फ तलबा का वक्त और सरपरस्तों का पैसा किया जा रहा है ज़ाय, जिससे तलबा के मुस्तकबिल को शदीद खतरा। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटों में मुतासिरीन की तादाद पहुंची 3300 के पार, 15 लोगों की मौत। एमपी में कोरोना टीकाकारी को लेकर गाइडलाइन जारी। 45 साल से कम उम्र वालों को नहीं लगेगा टीका। कम उम्र वालों को टीका लगाने वाले मुलाजमीन और अफसरान होंगे मुअत्तल। अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई। एमपी के दुर्ग में 14 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन। कलेक्टर ने अफसरान के साथ की मीटिंग। सख्ती के साथ लॉकडाउन के नफाज पर अमल करवाने की दी हिदायत। कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनजर आज वजारत सेहत की अहम मीटिंग। 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ तबादला ख्याल। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन की क़यादत में होगी मीटिंग। भोपाल में पुलिस बर्बरियत का नया मामला आया सामने। रात में लॉकडाउन का वक्त हो जाने और चाय की दुकान बंद करने को लेकर पुलिस और दुकानदार के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस वालों ने चाय वाले के घर पर जाकर घर की खवातीन और मासूम बच्चियों को भी अपने जुल्म का बनाया निशाना। उधर पुलिस का इल्जाम कि रात में लॉकडाउन का वक्त हो जाने के बाद चाय दुकानदार जहीर से दुकान बंद करने को जब कहा गया तो उसने पुलिस वालों पर गर्म चाय फेंक दी। इस वाक़े से कई पुलिस वाले जख्मी। मुल्क में किसानों का एहतजाज जारी। इस बीच संविधान बचाओ आंदोलन के नाम से तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया से बात करने के लिए आंदोलन से मुंसलिक अफराद पहुंचे। मीडिया से बात करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के अलावा साबिक जज जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल भी शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत पर लगाए गए इल्जाम कि वो आइन के खिलाफ कर रही है काम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई तालीमी पॉलिसी, ज़रई क़वानीन, तब्दीली मज़हब कानून जैसे क़वानीन पर भी सख्त नुक्ताचीनी। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की किताब भविष्य का भारत का उर्दू तर्जुमा, मुस्तकबिल का भारत का दिल्ली में इजरा। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िद हुई इजराई तकरीब में आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल, आरएसएस प्रचारक इंद्रीश कुमार भी हुए शामिल। मारूफ बैनुल-अक़वामी मॉडल और अदाकारा रेहा खान ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में दी हाजिरी। रेहा खान ने मज़ार पर मखमली चादर की पेश। फैशन की दुनिया में कई बैनुल-अक़वामी स्टेज पर खिताब जीतने वाली रेहा खान बॉलीवुड में कर रही हैं एंट्री। जोधपुर में आंखों में मिर्च का पाउडर फेंककर फ्लूदी जेल से 16 कैदी हुए फरार। पुलिस महकमे पे अफरा तफरी, जगह जगह कार्रवाई, नाकेबंदी, कैदियों की तलाश जारी। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। श्रीनगर के हफ्चिनार इलाके में आग की होलनाक वारदात। एक खातून और उनका 5 साला बच्चा झुलसकर हलाक। 6 रिहायशी मकान भी जलकर खाकस्तर। मुतासरीन ने की मदद की अपील।
कुपवाड़ा जिले के राजवाड़ हंदवाड़ा के जंगलात का मामला। कुपवाड़ा जिले के राजवाड़ हंदवाड़ा के जंगलात का पुलिस ने फौरी तौर पर लिया अपनी तहवील में। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात की शुरू। लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास के घर वालों की अपील। राकेश्वर सिंह की बहिफाजत वापसी की अपील। राकेश्वर सिंह जम्मू के रहने वाले हैं। बस्तर हमले के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह का अगवा कर लिया है। समाज सुधार सेवा सोसाइटी के कारकुनों ने पुंछ में एहतजाज किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने शहीद जवानों को पेश किया खराज अकीदत। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो नक्सलियों का सफाया करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। त्राल और अवंतीपुरा के 7 नौजवान हैं नजरबंद। कपूरथला जेल में है कैद। नौजवानों के अफराद खाना ने डासरा त्राल में किया एहतजाज। रिहाई का किया मुतालबा। जेल में उन्हें सहूलियात भी मैसर नहीं की जा रही। एहतजाजियों का था इल्जाम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने श्रीनगर में कांग्रेस चली गांव की ओर मुहिम का किया ऐलान। बैक टू विलेज के दौरान किए गए वादों पर पेशरफ्त का लिया जाएगा जायजा। जीएमईर ने इस दिन में पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग मुनक्किद। कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने एहतियातन स्कूल बंद करने का किया फैसला। ताहम मुख्तलिफ इलाकों से वालिदैन, तलबा और असातिज़ा इंतजामिया से कर रहे हैं मुतालबा। फैसले पर की जाए नजरसानी। उनका कहना स्कूल बंद रहने से तलबा के मुस्तकबिल का हो रहा है नुकसान। जिला कठुआ के जगतपुर इलाके में एक 85 साल शख्स की पुरअसरार मौत। अहले खाना ने उसको कत्ल करने का लगाया इल्जाम। बाद में पुलिस जाए वारदात पर पहुंची। लाश का किया गया पोस्टमार्टम। डीएसपी हेडक्वार्टर माजिद महबूब ने कहा मामले की जांच कर दी गई है शुरू। मंडी कस्बे में दरियाए पुलसित के करीब एक शख्स की लाश बरामद। मरने वाले की शिनाख्त राजपुरा के रहने वाले मंजूर अहमद के तौर पर। मंजूर अहमद बड़े दिनों से बीमार था। घर वालों का बयान। बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। उम्मीद की जा रही है आइंदा कुछ रोज के अंदर इस सड़क पर गाड़ियों को चलने की दी जाएगी इजाजत। बांडीपुरा गुरेज सड़क भारी बर्फबारी की वजह से कई माह से बंद। नाला फिरोजपुरा से बाजी निकालने उसके असरात पर प्रोग्राम। नाले से बाजी निकालने की पेशे से मुंसलिक लोगों को एतमाद में लेने की गई कोशिश। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जियोलॉजी एंड माइनिंग के इश्तिराक से प्रोग्राम का इनेकाद। ताहम कोई हतमी फैसला नहीं। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 442 नए मामले। कश्मीर डिवीजन से 280। जम्मू खित्ते से 162 अफराद कोविड-19 से पाए गए मुतासिर। कोविड से मुतासरा 2 लोगों की मौत की भी खबर। मजमूई तौर पर 2010 अमवात हुई हैं, जबकि 241 मरीजों को सेहतयाब होने पर मुख्तलिफ अस्पतालों से दी गई है छुट्टी। यूटी में फिलहाल 4154 एक्टिव मामले। बांडीपुरा में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स ने एक मुतनाज़ा हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में लिखा गया था 45 साल से ऊपर के सार्फिन अगर कोविड वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उन्हें किसी भी हालत में राशन नहीं किया जाएगा फराहम। कठुआ में डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के तहसील ऑफिस में कोविड की टेस्टिंग शुरू। तहसीलदार कठुआ गौरव शर्मा ने दी जानकारी। किसी काम से दफ्तर आने वाले अफराद का किया जा रहा है कोविड टेस्ट ताकि इस वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। कोविड मामलों में इजाफे के तनाजुर में पुंछ जिला इंतजामिया ने भी इंतजामात कर दिए सख्त। पुंछ में दाखिले के मरकज बिम्बर गली पर कोविड टेस्टिंग सेंटर को कर दिया गया बहाल। जिले में आने वालों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही जिले में दाखिला दिया जाएगा। लद्दाख यूटी में कोविड के 309 एक्टिव मामले। करगिल में 22 मामले। बाकी केस लेह में। करगिल में 31 मार्च तक कोविड के सिर्फ 5 मामले थे। मारूफ अदीब, शायर और मौलिक अब्दुल अहद आज़ाद की 73वीं बरसी। इस मौके पर गुलशन कल्चर फोरम कश्मीर के एहतमाम से बदरन मागाम में एक तकरीब का इनेकाद। मरहूम की जिंदगी और अदबी कारनामों पर पेश किए गए मकाले। पीर रूमी दारुल मार्फत कश्मीर ट्रस्ट ने टाउन हॉल गांदरबल में एक किताब का रस्मी इजरा अंजाम दिया। मीर सैयद अली हमदान की फारसी किताब के कश्मीरी तर्जुमे का रस्मी इजरा कोलगाम के मीर शाह मुस्तफा अलवी ने किया है तर्जुमा।
न्यूज़ 18 उर्दू को चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादियों का सिलसिला लगातार जारी। गंदो भलेसा के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों ने कहा, न्यूज़ 18 उर्दू अवाम की आवाज़ चैनल ने हमेशा लोगों के मसाइल को उजागर करने में अहम किया है अदा रोल। करगिल में छोलीचंद बटालेक इलाके के पंचों और सरपंचों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया एहतमाम। उन्होंने इलाके के स्कूलों की अपग्रेडेशन करने पर यूटी इंतजामिया, LAHDC करगिल, कमीशन सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन समेत दीगर आला ओहदेदारान का अदा किया शुक्रिया। प्रेस क्लब लद्दाख करगिल में तलबा के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, यूटी इंतजामिया ज़ंस्कार के तलबा के मसाइल हल करने में रही है नाकाम। तलबा ने कहा, उन्होंने RTI के जरिए मुख्तलिफ महकमों में उम्मीदवारों के मुंतखब होने की जानकारी तलब की थी, लेकिन उन्हें मालूमात फराहम नहीं की गई। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SA हसनैन का बयान। कहा, हिंद पाक के बीच अमन कायम करने के लिए इक़दाम करना वक्त की अहम ज़रूरत, ताहम पाकिस्तान को मज़ीद जिम्मेदाराना तरीके से आना होगा आगे। पुलिस स्टेशन मागाम में घरेलू तशद्दुद और दीगर मसाइल से निपटने के लिए विमेंस हेल्प डेस्क का इफ्तिताह। SSP बडगाम ताहिर सलीम ने किया इफ्तिताह। SDPO मागाम शौकत अहमद और SHO मागाम और बीरवा रहे मौजूद। CRPF के अफसरान की भी शिरकत। साउथ कश्मीर सूमो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनंतनाग में ट्रैफिक की बदनज़मी को दूर करने के इक़दाम पर इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन मेंबरान, म्यूनिसिपल काउंसिल, पुलिस, जिला इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक जाम और गाड़ियों पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम की वकालत। गो ग्रीन पामपोर नामी एक रज़ाकार तंजीम की पहल। तहसील इंतजामिया पामपोर के इश्तिराक से की गई पहल। ज़ाफ़रान के खेतों में मौजूद कूड़े करकट को हटाया गया। ज़ाफ़रान के खेतों में कूड़ा करकट न डालें, हुक्काम की भी अपील। BSF और CISF में भर्ती की मांग कर रहे उम्मीदवारों ने कठवा में किया एहतजाज। पैंथर्स पार्टी के बैनर तले किया गया एहतजाज। पैंथर्स पार्टी के जिला सदर ने लगाया इल्जाम, हुकूमत नौजवानों को कर रही है नजरअंदाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए हल्का होम शालीबुक के पार्टी कारकुनों ने एक दुआया मजलिस की मुनक़िद। खनाबल अनंतनाग में मुनक़िदा इजलास की सदारत साबिक़ असेंबली मेंबर एडवोकेट अब्दुल मजीद लारवी ने की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहतयाबी के लिए मांगी गई दुआएं। हिंद पाक के बीच सीज़फायर मुआहदे की पासदारी की वजह से सरहदी इलाकों के लोगों को अमन नसीब हुआ है। लोग अब मामूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे हैं। अखनूर में गवर्नमेंट हाई स्कूल खोई मिलन के तलबा का कहना है, पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से उनकी तालीम मुतासिर होती थी, ताहम अब वो पाबंदी से जा रहे हैं स्कूल। अखनूर के साबजिया में लोगों को राशन कार्ड से मुतालिक काफ़ी मुश्किलात दरपेश। समियान इलाके के लोगों का कहना, उन्हें कई बरसों से नए राशन कार्ड फराहम नहीं किए गए। उनका इल्ज़ाम, मुतालिका महकमे के उद्दार उन्हें सिर्फ सरकारी दफ्तर के चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। किश्तवाड़ के छतरों में फौज ने एथलेटिक्स मुकाबले किए मुनक़िद। लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद ने इन मुकाबलों में लिया हिस्सा। इस मौके पर कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी किए गए तक़सीम। 1971 की जंग के 50 बरस मुकम्मल होने पर राष्ट्रीय राइफल्स भदरवा यूनिट ने तकरीब का किया एहतमाम। स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत PG कॉलेज भदरवा में इस तकरीब का इनेकाद। शहीदों को पेश किया गया खिराज अक़ीदत। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस बारामूला की नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन ने असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बशीर अहमद सूफी की सुबकदोशी पर एक प्रोग्राम किया इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुदस्सिर हुसैन की सदारत में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बशीर अहमद सूफी की खिदमात का तज़किरा किया गया। DDC उधमपुर के नौमुंतखब चेयरमैन लालचंद ने अपना ओहदा संभाला। उन्होंने DC अंदो कमल चिब, SSP, DDC और BDC मेंबरान और दीगर की मौजूदगी में दफ्तर का इफ्तिताह किया। तमाम अफराद ने लालचंद को पेश की मुबारकबाद। पुंछ में फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। 1971 की जंग में फौज की मदद करके अशोक चक्र हासिल करने वाले मौलवी गुलामुद्दीन की याद में टूर्नामेंट का इनेकाद। इलाके के 4 गांव की टीमों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।
شائقین کی بھی بڑی تعداد رہی موجود۔ کچھ اور اہم خبریں بھی۔ دہلی میں 24 گھنٹے کھلے رہیں گے ٹیکہ کاری کے سینٹرز، کورونا کو مات دینے کے لیے اروند کیجریوال حکومت کا اہم فیصلہ۔ کیجریوال نے وزیر اعظم کو لکھا خط، ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد کی پابندی ختم کرنے کا کیا مطالبہ۔ نیوز 18 اردو کی خبر نے دکھایا ایک بار پھر سے اثر، مدھیہ پردیش حج کمیٹی کے ملازمین کی 7 ماہ بعد جاری ہوئی تنخواہ، ملازمین میں خوشی کی لہر۔ مدھیہ پردیش حج کمیٹی کے انچارج یاسر عرفات نے نیوز 18 اردو کا ادا کیا بے حد شکریہ۔ وہیں جے پور میں پسماندہ علاقوں کے یتیم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے 50 یتیم بچوں میں تقسیم کی اسکالرشپ۔ رمضان کے پیش نظر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شوگر کے مریضوں کے لیے ورکشاپ کا انعقاد، ڈاکٹرز نے شوگر کے مریضوں کے لیے دیے مفید مشورے۔ آج اتر پردیش پولیس کے قبضے میں ہوگا مافیا ڈان مختار انصاری، ہینڈ اوور کیا جائے گا مختار انصاری کو۔ رپورٹ کے مطابق باندہ ضلع میں رکھا جائے گا مختار انصاری کو۔ یوپی میں کورونا کے معاملوں میں لگاتار اضافہ، حکومت نے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سخت احکامات کیے جاری، 100 لوگوں کے جمع ہونے پر لگائی پابندی، عوام میں خوف بھی۔ لکھنؤ کے سول اسپتال میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لی کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز، ویکسین لینے کے بعد بھی لوگوں سے احتیاط برتنے کی سی ایم نے کی اپیل۔ بہار کے کئی اضلاع میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے، پٹنہ، کشن گنج، بیگوسرائے، ارریہ، سپول، سہرسہ، مدھے پورہ، کٹیہار میں محسوس کیے گئے یہ جھٹکے، جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ بہار میں آئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد پی ایم مودی نے نتیش کمار سے کی بات، جان و مال کی نقصان کی لی جانکاری۔ وہیں آسام کے تنسکیا میں بھی محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر پیمانے پر 2.7 تھی ان کی شدت۔ بی ایس ای بی نے جاری کیے میٹرک کے نتائج، 78.17% طلبہ ہوئے کامیاب، 4 لاکھ سے زیادہ طلبہ فرسٹ ڈویژن سے پاس، گزشتہ سال کے مقابلے کامیابی کا فیصد رہا ذرا کم۔ میٹرک کے امتحان میں پہلے نمبر پر رہے 3 طلبہ، پوجا، شبھ درشنی اور سندیپ بنے ٹاپر، تینوں نے حاصل کیے 484 نمبر۔ بہار کے سسرام میں طلبہ کا سڑکوں پر ہنگامہ، پوسٹ آفس چیک پر توڑ پھوڑ، پولیس نے 9 طلبہ کو کیا گرفتار کی۔ نیوز 18 کی مہم لائی رنگ، الفا کی قید سے رہا ہوئے انجینئر رام کمار، 21 دسمبر کو شدت پسند تنظیموں نے کیا تھا رام کمار کا اغوا۔ حیدرآباد کو سگنل فری شہر بنانے میں ایک اور پیش رفت، تلنگانہ کے وزیر کے ٹی آر کے ہاتھوں ہائی ٹیک سٹی کے پاس روڈ انڈر برج کا افتتاح۔ تلنگانہ میں جزوی لاک ڈاؤن کے فرضی جیو کے ذریعے شہریوں میں ہلچل مچانے والے سی اے گرفتار، لیپ ٹاپ، موبائل فون بھی کیا گیا ضبط۔ حیدرآباد پولیس کمشنر انجنی کمار کی پریس کانفرنس۔ آندھرا پردیش کے سابق نائب وزیر اعلیٰ بابو جگجیون رام کا یوم پیدائش، اس موقع پر ملک بھر کی طرح آندھرا پردیش میں تقریب کا اہتمام، گورنر، وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر نے پیش کیا خراج۔ آندھرا پردیش کے کڑپا میں واقع ٹرپل آئی ٹی میں رینکنگ، شعبہ انجینئرنگ کے 2 طلبہ گروپس میں تصادم، 3 کی حالت نازک۔ اے پی تلنگانہ سرحد پر انفورسمنٹ کی کارروائی، غیر قانونی طور پر منتقل کیے جانے والی چاندی کے زیورات ضبط۔